हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा नेशनल अफेयर्स ऑफ नवंबर। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gained today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्रयान की। समुद्रयान एक इंडिया का पहला और एक यूनिक मैन्ड ओशन मिशन रहने वाला है, जो कि लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है। अगर इससे पूछा जाए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ये रिस्पॉन्सिबल है इस मिशन के लिए, वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। ठीक। समुद्रयान मिशन का नाम रहेगा। मिनिस्ट्री रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसके साथ साथ याद रखना, मत्स्य 6000 ये भी एक मैन्ड सबमर्सिबल है, जो कि डेवलप किया जाएगा अंडर द इंडियाज डीप सी मिशन, जो कि अभी करंटली डेवलप किया जा रहा है DRDO, इसरो एंड IIT मद्रास के द्वारा। तो समुद्रयान ये मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में है, इनके द्वारा। अगर रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की।
2021 के। इससे रिलेटेड आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो होगी इसकी थीम। क्या थीम रहेगी? एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द 21st सेंचुरी, इंपेरेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड। ये थीम रहेगी आपकी इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की, जो कि एड्रेस की गई थी राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया के लार्जेस्ट लैंडफिल बायोगैस प्लांट की, जो कि कहां पे लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। मार्क करना, वन लाइनर है बिल्कुल ये क्वेश्चन, कि इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहां पे लॉन्च किया गया है, किस जगह पे? हैदराबाद में। रैमकी इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड का पहला एंड इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैदराबाद में। ठीक है, और हैदराबाद का है? तेलंगाना में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 14th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस की। तो 14th एडिशन ऑफ अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो हरदीप सिंह पुरी जी, और रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। नाम रहेगा मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। थीम क्या रहेगी? मोबिलिटी फॉर ऑल। काफी इंपॉर्टेंट, मोबिलिटी फॉर ऑल थीम अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एज वेल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू अफोर्डेबल, क्लीन, सेफ, इंफॉर्मेटिव, एफिशिएंट एंड एसेसिबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली द स्पेशली एबल्ड वीमेन, एल्डरली एंड चिल्ड्रन। तो अगर 15वें UMI कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कोची केरला में हुई थी, एंड थीम रहेगी आज़ादी एट 75, सस्टेनेबल, आत्मनिर्भर मोबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया डेयरी सहाकर स्कीम। ये गुजरात में लॉन्च की गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। डेयरी सहाकर स्कीम गुजरात की स्कीम रहेगी। नेक्स्ट है आपका नेशनल ट्राइब डांस फेस्टिवल। रायपुर छत्तीसगढ़ में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया डांस फेस्टिवल। ठीक है, नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 3 दिन लंबा था, सेकेंड एडिशन था इसका, छत्तीसगढ़ में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और छत्तीसगढ़ के रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में इसमें देखा गया हमें ये इवेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इंडिया का पहला मेगा स्केल मैलिक एनाइड्राइड प्लांट सेटअप किया गया पानीपत हरियाणा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलिएगा। सिंपल वन लाइनर है बिल्कुल, कि इंडिया का पहला मेगा स्केल मैलिक एनाइड्राइड प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया? पानीपत हरियाणा में इसको लॉन्च करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कि प्रगति मैदान में लॉन्च किया करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसको मेंटेन करने के लिए, इस पर नज़र रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 20 मेंबर की। ये आपको याद रखना है। कितने मेंबर की वो कमेटी रहेगी? 20 मेंबर की वो कमेटी रहेगी। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जो कि देखेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी रहती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि हमारे पहले डेप्यूटी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि लॉन्च की गई धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। भाषा संगम इनिशिएटिव पहला, भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन दूसरा, और तीसरा है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्विज एप्लीकेशन। ये 3 चीज़ लॉन्च की गई थी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो कि डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। अगर लैंग्वेजेस की बात की तो ये 8वें शेड्यूल में इनकी बात की गई है और टोटल अभी तक 22 लैंग्वेज की मेंशन करा गया आपका इस शेड्यूल में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा एक पैन इंडिया हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई है, जिसको बोला गया आयुष्मान CAPF। ये आपकी हेल्थ केयर सर्विस, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी जो हमारे आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनके एंड उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। नेक्स्ट 5th गंगा उत्सव,
द रिवर फेस्टिवल, इसको रिवर फेस्टिवल भी बोल देते हैं, ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। ये इनॉग्रेट किन के द्वारा किया जाता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसकी अभी 5th एनिवर्सरी मार्क की गई थी, मार्क द फिफ्थ नहीं, दिस ईयर मार्क द 5th एडिशन, यस 5th एनिवर्सरी इसकी मार्क की गई थी। और ये किसकी होती है एनिवर्सरी? टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ रिवर गंगा एज द नेशनल रिवर। रिवर गंगा को नेशनल रिवर का खिताब मिला था 4 नवंबर को, इसीलिए 5 साल पहले, इसीलिए ये 5th एडिशन सेलिब्रेट करा जाता है। ऑलराइट, फिर गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट, ये मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, जो कि डेवलप किया गया IIT कानपुर उत्तर प्रदेश के डॉक्टर प्रोफेसर राजीव सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6D टेक्नोलॉजी की। अभी रिसेंटली DOT होता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक इनोवेशन ग्रुप फॉर्म किया है 6G टेक्नोलॉजी पे, जो कि चेयर किया जाएगा के राजा रमन जी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करना। किन के द्वारा ये ग्रुप चेयर किया जाएगा? के राजा रमन जी के द्वारा इस ग्रुप को चेयर किया जाएगा, जो कि 6G कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट, हर घर दस्तक, ये कैंपेन स्टार्ट किया गया सेंटर के द्वारा टू इंक्रीज वैक्सीनेशन कवरेज। वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जो है हर घर दस्तक, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी रिलेटेड रहेगी इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनके द्वारा हर घर दस्तक, ये एक डोर टू डोर कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट किया गया है, ताकि वर्ल्ड अपने देश में हर व्यक्ति को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुके। नेक्स्ट हम बात करेंगे UIDAI की एक आधार हैकेथॉन के बारे में, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए लॉन्च की गई थी, ठीक है। आधार हैकेथॉन नाम रहेगा। लॉन्च किया इसके द्वारा किया गया UIDAI, जो कि है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। इन्होंने आधार हैकेथॉन को लॉन्च किया था, जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव को ऑर्गेनाइज कराएगी। ये पहली एवर इवेंट है जो कि कंडक्ट किया गई है UIDAI के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की, जिसमें इसने टॉप किया वो स्टेट कौन सी रहेगी? गुजरात। गुजरात ने किस में टॉप किया? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो लीड्स लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, मतलब जब आप कुछ सामान का इधर से उधर सामान करते हैं, मतलब आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें जो खर्चा होता है प्रोडक्ट को सेंड करने में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो गुजरात ने टॉप किया है, मतलब उनकी लॉजिस्टिक्स बहुत कम है। जितना कम लॉजिस्टिक उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा फिर आपको। अगर स्टेट्स की बात करें तो टॉप रही गुजरात। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया, और अगर सिर्फ यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो दिल्ली ने टॉप किया लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की 2021 की, जिसमें किस सिटी का नाम मेंशन किया गया है, ऐड की गई है, वो है आपकी श्रीनगर ने ज्वाइन किया है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने सेलेक्ट किया इंडिया के श्रीनगर सिटी को, जो कि कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, एज वन ऑफ द 49 सिटीज सेलेक्टेड अंडर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क। इंडिया की 6ठी सिटी बन गई है श्रीनगर, जिसको इस खिताब से सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो जो इनको सम्मानित किया गया वो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में रखा गया है श्रीनगर को। जयपुर को, जो बाकी इंडियन सिटीज़ हैं वो 5 ये रही, जयपुर को क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में, वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, मुंबई को फिल्म और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में, और अब श्रीनगर को ऐड कर दिया गया जो कि 6ठी बनी है, ये भी क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स कैटेगरी में इसको इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट इंडिया की DRDO और इजराइल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फॉर ड्यूल यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब रिसर्च एंड इनोवेशन करेंगे एंड वो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में, रिसर्च पर्पस में, डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे एक दूसरी कंट्री की। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली इंडिया का पहला सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया IIT गुवाहाटी में। सबसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, इंडिया का पहला सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि इंडिया का पहला सेंटर फॉर रिसर्च ऑन ड्रोन टेक्नोलॉजी कहाँ पे लॉन्च किया गया? IIT गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया गया। बिल्कुल मार्क कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन नेवी ने होस्ट किया थर्ड एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव। किसके द्वारा, किस फोर्स, इंडिया की किस फोर्स के द्वारा थर्ड एडिशन ऑफ गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव को होस्ट करा गया? वो है इंडियन नेवी के द्वारा। इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया थर्ड मैरीटाइम गोवा कॉन्क्लेव फ्रॉम 7 to 9 ऑफ नवंबर अंडर द एजिस ऑफ नेवल वॉर कॉलेज गोवा। ये इवेंट को होस्ट किया गया एडमिरल करमबीर सिंह के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये तो पुराने हैं, ये 24 थे, लेकिन अब जो 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार जी। एडमिरल आर हरि कुमार जी चीफ ऑफ नेवी के 25th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं इंडियन नेवी के। फिर जो थीम रहेगी आपकी थर्ड जीएमसी की, वो क्या थी? मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, अ केस फॉर प्रोएक्टिव रोल फॉर इंडियन ओशन रीजन नेवीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रस्थान की। ये एक इंडियन नेवी के कंडक्ट कराई गई सिक्योरिटी एक्सरसाइज है इन द वेस्टर्न ओडीए ऑफ द मुंबई कोस्ट। इंडियन नेवी ने कंडक्ट कराई सिक्योरिटी एक्सरसाइज, प्रस्थान उसका नाम रखा। ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया ऑफ द ऑफ कोस्ट ऑफ मुंबई में इसको एक्सरसाइज को कराया गया और ये कंडक्ट कराई गई थी बाय द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। एवरी 6 महीने में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू एंश्योर ऑफशोर सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेट मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ओएनजीसी, पोर्ट ट्रस्ट, कस्टम, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट and marine police towards refining standard operating procedures for response to various contingencies that could occur in the ODAs. The drill focused on contingencies such as terrorist intrusion, bomb explosion, major fire, oil spill, man overboard, casualty evacuation, loss of control of vessel and mass evacuation. Next, Union Minister Jitendra Singh has inaugurated the world's most sophisticated MRI facility at NBRC. What is NBRC? NBRC stands for National Brain Research Center and MRI is your magnetic resonance imaging. So recently world's most sophisticated magnetic resonance imaging facility, that is MRI scanner, was recently inaugurated at NBRC, that is National Brain Research Center, that is located in Manesar, Haryana. The new facility could reduce the scanning time for patients by almost a quarter. Next, Union Minister Jyotiraj Scindia inaugurated the curtain raiser event about Wings India 2022. Remember, Wings India 2022 is an event, or you can say curtain raiser, of the 5th edition of Asia's largest event on civil aviation, that is Wings India 2022. The organizing ministry, related ministry can be asked regarding this question, and the related ministry is the Ministry of Civil Aviation. The biennial event is scheduled on March 24 to 27 in 2022 at Begumpet Airport, Hyderabad, on the theme India at 75, No New Horizon for Aviation Industry. Next is a 3-day Rashtriya Raksha Samarpan Parv is your Divas, or you can say it is your festival. So Rashtriya Raksha Samarpan Parv was recently inaugurated or was held in Uttar Pradesh. Mark this, in Jhansi, Uttar Pradesh, the Rashtriya Raksha Samarpan Parv was inaugurated or held. Important. Then next Parv or next festival is your Boita Bandhana. Boita Bandhana festival is celebrated in which state? It is celebrated in Odisha. Mark this, Boita Bandhana celebrated in Odisha. Next we'll be talking about Smart Police Perception Index. In this, Telangana and Andhra Pradesh has scored the highest, and the least was scored by Bihar and UP in the Smart Policing Perception Index. Next is your BTS, Bengaluru Tech Summit. Important. It was the 24th edition of the Bengaluru Tech Summit, that is the Asia's largest technology event, conducted between 17th to 19th of November in the hybrid format. Theme was very important, you should know and can be asked, is driving the theme for the BTS, that is Bengaluru Tech Summit of year 2021, that is the 24th edition. Next we'll be talking about exercise Dakshin Shakti that was recently organized by Southern Command of Indian Army. Mark this. Simple and easy question, direct. So which command of Indian Army launched the military exercise that is Dakshin Shakti? This is your Southern Command.
and the location where this exercise will be conducted is Rajasthan and Gujarat. Next we'll be talking about a trilateral exercise, that is Dosti. Dosti is conducted between India, Maldives and Sri Lanka. These are the three countries, very important, you should know. Between these exercise is conducted, that is Dosti. It is a 15th edition of the exercise, 5-day long exercise Dosti. Location where this exercise will be conducted is Maldives, mark this. So three countries, Maldives, India, Sri Lanka, 15th edition of this exercise Dosti, and it is to keep the for the security regions of which area? For the security regions of the Indian Ocean region this exercise was conducted. Next we'll be talking about the first All India survey on domestic workers that was recently released by Union Minister Bhupendra Yadav ji. Mark this, very important. All right, so Ministry of Labour and Employment released the first ever All India survey on domestic workers, very important, mark this. Next, we'll be talking about Niti Aayog has launched the first Sustainable Development Goal Urban Index for year 2021-2022, in which the city that topped was Shimla. Mark this. Alright, it was launched by Dr. Rajiv Kumar, who is the Vice Chairman of Niti Aayog, and Professor Dr. Claudia Warning, who is the Director General of Federal Ministry of Economics, Cooperation and Development of Germany. They together launched Sustainable Development Goal Index and Dashboard. That is important. Next we'll be talking about Indian and Indonesian Navy holds the 37th edition of the Coordinated Patrol. This is also known as CORPAT. So the 37th edition of CORPAT was held between India and Indonesian Navy. Second question that can be asked is that from Indian side, which naval ship took part in this CORPAT exercise? It was your Indian naval ship Khanjar that took part in this exercise, and from Indian naval ship and the naval ship from Indonesian side was your INS KRI Sultan Taha Saifuddin. Next, which is the India's airport, or you can say recently Noida International Airport or the Jewar Airport is recognized as India's first zero emission airport, that foundation stone of which was led by Narendra Modi ji at Jewar, UP. Question can be asked is which is the where India's first zero emission airport will be built? It will be built in Uttar Pradesh. Its name is Noida International Airport or Jewar Airport, located at the Jewar district of Uttar Pradesh. Alright, this will be the first net zero emission airport. This is important. Now if we talk about Uttar Pradesh airport, Kanpur Airport, Gorakhpur Airport, Agra Airport, also known as Pandit Deen Dayal Upadhyay Airport. Then heritage sites are Agra, Taj Mahal, Fatehpur Sikri. Some bird sanctuaries are Nawabganj Bird Sanctuary, Shandi Bird Sanctuary and Samaspur Bird Sanctuary. Next we'll be talking about first ever Arabal festival that was held in the Kulgam district of Jammu and Kashmir. This Arabal festival was क्यों हुआ था? ये हुआ था ताकि वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके जम्मू एंड कश्मीर में। अराबल एक वहाँ पे वाटरफॉल भी है जिसको नाइग्रा फॉल बोला जाता है कश्मीर का, ठीक है। तो अराबल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ था? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सेलिब्रेट किया गया वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? मेघालय में, शिलोंग में इसको सेलिब्रेट किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट 2 लोकेशन रहेंगी, वार्ड्स लेक और पोलो ग्राउंड। मेघालय में इसको सेलिब्रेट किया गया। स्टेट पूछी जाएगी आपसे कि चेरी ब्लॉसम किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, तो मेघालय में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपसे बताया गया कि इंडिया की जो दिल्ली की मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है ना, वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट मेट्रो रेलवे नेटवर्क बन गया। ये आपको याद रखना है। आई रिपीट, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क कौन सी बनी है? DMRC, जो कि है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। फिर पिंक लाइन बिकम द सेकंड मेट्रो कॉरिडोर इन न्यू दिल्ली टू हैव ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, जो कि रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। आई रिपीट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया गया था? नीति आयोग के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और इसमें बताया गया है कि आपका बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश एकदम नीचे रैंक पे रहेंगे, लोएस्ट। एंड जिस स्टेट में सबसे कम पॉवर्टी है, अगर आपसे वो पूछा जाए तो वो कौन सी स्टेट रहेगी? केरला। केरला में सबसे कम पॉवर्टी है। और सबसे ज़्यादा गरीबी देखी जाए तो वो कौन सी है? बिहार, झारखंड एंड यूपी।
अगर नीति आयोग की बात करें तो इसको 1 जनवरी 2015 को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके सीईओ रहेंगे अमिताभ कांत। जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के वो करंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो भी हैं नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहली सिटी जिसमें रोपवे सर्विस स्टार्ट की गई है एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो यूपी स्टेट है, सिटी वाराणसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंडिया की वो पहली सिटी कौन सी है या स्टेट कौन सी है जिसमें रोपवे सर्विस एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट की जाएगी। वो है वाराणसी सिटी रहेगी और स्टेट रहेगी यूपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज की। ये कहाँ पे है? मणिपुर में रहेगी। इंडिया की कौन सी स्टेट में है वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेलवे पियर ब्रिज? मणिपुर में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस रिवर पे बिल्ट किया गया है, ये आपका इजाई रिवर पे इसको बिल्ट किया गया है। इसके इजाई रिवर के ऊपर इसको बनाया जाएगा वर्ल्ड के टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज को, जो कि कहाँ पे है? मणिपुर में। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इजाई रिवर कहाँ से फ्लो करती है, तो ये मणिपुर से फ्लो करती है। ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए आपको। Hello friends, through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics. Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives. Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price, and that will help you to boost your preparation.